تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنات سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ نئی نویلی دلہن نے کروٹ بدلی اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اجنبی ماحول، خوبصورتی سے سجا کمرہ اور پہلو میں سویا ہوا اجنبی جو اب اس کا اپنا تھا، اس کا سہاگ، اس کا محافظ۔ وہ بے سد سوتے میاں کو پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر سعدیہ نے دیکھا کہ آصف کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ حیرت سے اپنے میاں کو دیکھنے لگی کہ نہ دعا نہ سلام، بالکل خاموشی سے آصف باہر کیسے چلے گئے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس چلی آئی۔ اب دیکھتی ہے کہ آصف تو بدستور ویسے ہی وہاں سو رہے ہیں جیسے وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح سے چونک گئی، مگر دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ وہ بہت بہادر اور نڈر لڑکی تھی، بہت مستقل مزاج۔ بچپن سے پراسرار اور ڈراؤنی کہانیاں پڑھنا اور قصے سننا اسے بہت پسند تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بہت کچھ سمجھنے میں مدد دی۔ دن شور ہنگاموں اور مہمان جو رات کو رکے تھے ان کے ساتھ مصروفیت میں گزرا۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی، ماشاءاللہ بہت رونق لگی تھی۔ آصف کی فیملی 3 بھائیوں، 1 بہن اور والدین پر مشتمل تھی۔ ان کا مکان حویلی نما تھا، پرانے طرز کا بنا ہوا۔ عظمت صاحب اور بیگم عظمت اس آبائی مکان کو کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بچے اکثر ہی ضد کرتے کہ اسے بیچ کر ایک اچھا سا مکان تعمیر کر لیں، مگر والدین کے حکم کے آگے وہ سب کے سب مجبور تھے۔ سارے دن کے ہنگامے، شور اور تقریب کی گہما گہمی کے بعد جب دونوں میاں بیوی بیڈ پر آئے تو سعدیہ نے اپنے میاں آصف کو مخاطب کیا۔ آصف، آپ صبح کمرے سے باہر کہاں گئے تھے اور پھر فوراً واپس آ کر سو گئے؟ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو بھائی، میں تو جب رات کو سویا تو تبھی جاگا جب تم نے مجھے آ کر جگایا تھا۔ اچھا، سعدیہ اچھا کو طول دیتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ پر جان تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس طرح آصف نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر سوال کیا۔ چلے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ کچھ دن نارمل گزر گئے۔ سمن اور سعد کو اتنی جلدی گھر میں دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا، ارے بچوں، آپ اسکول سے کس کے ساتھ واپس آئے ہو؟ آصف چاچو کے ساتھ، سمن نے جواب دیا۔ کیا آصف چاچو آپ کو اسکول سے لینے آئے تھے؟ جی، تو پھر وہ آپ کہاں گئے ہیں؟ سعدیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو ہمیں گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر والوں کے ساتھ اب سعدیہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ آصف نے کبھی ایسا تو نہیں کیا، خاص طور پر بینک سے ورکنگ ٹائم میں بچوں کو اسکول سے لینے جائیں اور پھر گیٹ پر چھوڑ کے چلے جائیں۔ بیگم عظمت نے کہا، سعدیہ ایسا کرو، تم آصف کو کال کرو اور پوچھو کہ بچوں کو اتنی جلدی اسکول سے کیوں لائے اور پھر گیٹ پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اوپر کیوں نہیں آئے۔ جب سعدیہ نے کال کی اور آصف سے پوچھا تو آصف نے کہا، میں تو بینک پر ہی ہوں، میں نے بچوں کو اسکول سے نہیں لیا اور نہ ہی گھر پر ڈراپ کیا۔ اس معاملے پر سبھی بہت ڈسٹرب تھے۔ پھر آصف نے بیوی کو سمجھایا کہ یار تم پریشان نہ ہو، میں لنچ ٹائم میں آف کر کے آ رہا ہوں۔ سعدیہ نے ساس سسر کو مخاطب کیا، امی ابو، میں اچھی طرح سے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں اچھا خاصا مسئلہ ہے، اس گھر میں جنات آباد ہیں۔ میں نے تو شادی کے دوسرے ہی دن دیکھ لیا تھا، مگر آپ لوگوں کی خاموشی اور اطمینان دیکھ کر میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ جو بھی معاملات ہیں تکلیف دہ یا نقصان دہ نہیں ہیں، مگر ہیں تو صحیح، یا تو اس کا سدِ باب کریں یا پھر مکان فروخت کریں اور کہیں اور گھر لے لیں۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، یہ ہمارا آبائی مکان ہے، ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ دونوں میاں بیوی یک زبان ہو کر بولے۔ سعدیہ کی دونوں جٹھانیاں اور جیٹھ اور آصف خود بھی یہی چاہتے تھے، مگر والدین کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں غیر مرئی مخلوق کا بھی بسیرا ہے، لیکن بیٹا جو بھی ہے وہ ہمیں جانی اور مالی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ عظمت صاحب بولے، ابو جی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کے ستارے کمزور ہوتے ہیں
तो उस पर ऐसी चीज़ें फ़ौरन हमला कर देती हैं। सादिया ने सुसर को समझाना चाहा। नहीं बहू, कई सालों से उनका मस्कन है ये मकान। जब आज तक उन जिन्नात ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मगर अब्बू जी माफ़ करें, ये जहनी अजियत तो दे रहे हैं ना। इनका क्या भरोसा, क्या एतबार, कब इनको हमारी कोई बात बुरी लग जाए और ये हमें नुकसान पहुंचा दें। अजमत साहब कुछ सोचते हुए बोले, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। सराज, आसिफ और महमूद से भी बोलो, मालूम करो कोई अच्छे मुत्तकी परहेजगार बाबा जी को तलाश करें। यहाँ तो हर गली कूचे में अपनी अपनी दुकानें, अपनी अपनी पटारियाँ खोल के लोग बैठे हैं। शोभता पास, जादूगर। और फिर बड़ी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद एक बहुत ही मशहूर माने हुए पीर साहब मिल गए। उन्होंने आकर घर का मुकम्मल जायज़ा लिया और अपना काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये तो कई साल से यहाँ पर आबाद हैं। ये एक नहीं है, कई ख़ानदान यहाँ पर जिन्नात के आबाद हैं। उनको यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। आप लोग उनकी जगह पर काबिज हैं। इस काम में रुकावट बनने वाले की जान भी जा सकती है। बहरहाल चलें, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर वही हुआ। एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में पीर साहब का इंतकाल हो गया और हमारा काम अधूरा रह गया। इन लोगों ने फिर दूसरे पीर साहब का भी इंतज़ाम किया, लेकिन उनकी गाड़ी पर किसी दुश्मन ने फायरिंग की और वो मौके पर ही हलाक हो गए। एक रोज़ सादिया ने ख्वाब में देखा कि कोई उसे पुकार रहा है, मुखातिब कर रहा है। उसने तवज्जो से सुना तो आवाज़ में बहुत करख्तगी और गुस्सा था। सादिया, गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सुकून से रहे, जानी और माली नुकसान ना हो, तो हमें मत छेड़ो, मत खेलो हमसे हमें यहाँ से निकालने का खेल, वरना इस खेल में अभी तो 2 सपेरों की जान गई है। तुम्हारी कुल फैमिली से भी किसी की जान जा सकती है। बेहतर यही है कि हमें हमारे इस घर में रहने दो। हमारी जगह हमसे मत छीनो। हमें तुम्हारे ख़ानदान से मोहब्बत और हमदर्दी है। हम तुम लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि तुम्हारी मदद करते हैं। जब हम तुम्हें तंग नहीं करते, तुम्हारी जगह नहीं छीन रहे हैं, तो तुम लोग हमारे कबीले को भी तंग मत करो। हमारी जगह मत छीनो। हम एक नहीं, कई जिन्नात के ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं। हमें बेघर मत करो, वरना हम कई घरों में बढ़ जाएंगे और फिर सारी हमदर्दी, मोहब्बत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि कई घर और कई अफराद हमारी वजह से परेशान हों और नुकसान उठाएं? सादिया जब सुबह उठी तो उसने अपना ख्वाब सब लोगों को सुनाया। फिर आखिर में यही तय पाया कि हम इन जिन्नात के मामलात में ना तो दखल देंगे और ना ही इन सब को यहाँ से दरबदर करेंगे। अब भी इस घर में तीनों भाई अपनी फैमिली और वालिदैन के साथ रहते हैं। अब वो जिन्नात भी किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे जहनी अजियत हो। घर के हर फर्द ने महसूस किया है कि बाकायदा चलने फिरने की खटपट की आवाज़ें, किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहता है। घर में तरह तरह के खाने और पकवान की खुशबू भी फैल जाती है। जब सारे घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, चाहे वो रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, घर में मुकम्मल खामोशी हो, तब भी किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। मगर अब बच्चा बच्चा इन बातों का आदी हो गया है, किसी को भी डर नहीं लगता। एक दिन बड़े भैया की बेटी उनसे कहने लगी, पापा आप अभी दादू के कमरे में क्यों सो रहे थे? बड़े भैया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तकरीबन हर फर्द के साथ ये हादसा हुआ कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह सोता हुआ मिला। ये कहानी मुझे मेरे बैंक के वर्कर ने सुनाई कि बाजी अब हम सब आदी हो गए हैं। मैंने पूछा, आसिफ, सादिया जब नई दुल्हन बनकर आई थी, इस किस्म की बातों और हरकतों से डरती नहीं थी? तो आसिफ ने कहा, नहीं, माशाअल्लाह वो बहुत निडर और बहादुर है। हालांकि मुझे कभी कभी खौफ आता है, मैं डरता हूँ अकेले कमरे में सोते हुए। कभी कभी तो सादिया बाकायदा अपने कमरे में उनसे हमकलाम होती है और मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाता हूँ।
आसिफ की इस कहानी से मैंने तो यही मतलब अखज़ किया कि जिन्नात में अच्छे, बुरे, बेज़रर और नुकसान पहुंचाने वाले, फ़ायदा पहुंचाने वाले सभी तरह के जिन्नात होते हैं। इनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैंने आसिफ से कहा कि आसिफ, मेरे साथ भी ऐसे चंद एक वाक़यात हो चुके हैं। हम लोगों ने पिछला घर जो सेल किया था वो मलीर के इलाके में था। ऊपर भी एक पोर्शन था और नीचे भी एक पोर्शन था। मुझे ऊपर के पोर्शन में जिन्नात का बसेरा मालूम होता था, लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं हुई। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही नफ़ा। हाँ, उनके बच्चे मेरे पोतों के साथ खेलते थे। अक्सर मेरा पोता छत पर अपनी साइकिल से खेलता हुआ कहता, लो अब आपकी बारी है, आप साइकिल चलाओ, और वो साइकिल से उतर जाता। मेरे देखते ही देखते वो साइकिल खुद ब खुद दोबारा चलना शुरू हो जाती। एक बार मेरा पोता अपनी माँ से कहने लगा, मम्मा, मेरा दोस्त है ना, उसके पास चप्पल नहीं है, नंगे पाँव होता है, छत पर धूप बहुत तेज़ होती है तो उसके पाँव जलना शुरू हो जाते होंगे ना, प्लीज़ आप उसके लिए चप्पल लाएंगी? और मेरी बहू ये सुनकर चुप हो जाती। मेरा तो ये भी मानना है कि जो मुसलमान नेक, नमाजी, परहेजगार जिन होते हैं वो सफाई पसंद होते हैं, अगरबत्ती जलाने या खुशबू करने से खुश होते हैं और घर वालों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। मेरी बेटी जब कवारी थी, हमारे घर में थी, तो उसको घर में खुशबू करने का बहुत शौक़ था। वो घर की सफाई सुथराई रखती और बाकायदा घर में अगरबत्ती जलाकर खुशबू की धुनी देती थी। वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अभी ट्यूशन पढ़ाते उसे कुछ ही अरसा हुआ था। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, अम्मी, आपके जहेज़ की चायदानी में मैं अपने कुछ पैसे रखती हूँ। मैंने 100 रुपये रखे थे, जिसमें से मैंने 20 रुपये की चीज़ मंगवाई थी और बकिया पैसे मैंने फिर चायदानी में वापस रख दिए। थोड़ी देर बाद मैंने गिने तो वो 80 रुपये होने के बजाय 180 रुपये थे। क्या आपने उस चायदानी में कुछ पैसे रखे हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो मालूम भी नहीं कि तुम चायदानी में पैसे रखती हो। मैं भला वहाँ पैसे क्यों रखूँगी? फिर अक्सर ऐसा होने लगा। उसकी चायदानी में हर 1 या 2 दिन के बाद 100 रुपये का इजाफा हुआ होता। मगर मेरी बेटी की शादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। मैंने आसिफ को बताया कि अभी भी मेरे साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ चलती रहती है। मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ती हूँ तो यूँ होता है जैसे कोई पीछे से कुर्सी को हिला रहा है। मैं डिस्टर्ब होती सलाम फेर कर पीछे मुड़कर कहती हूँ, भाई तंग मत करो, मुझे सुकून से नमाज अदा करने दो। और फिर मैं आराम से पूरी नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे कोई तंग नहीं करता। मेरी अपने रब्बे करीम से दुआ है कि हम सबको जिन्नात के शर से अपनी हिफ्ज़ व अमान और रहमत के हिसार में रखे।